اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد۔ نہج البلاغہ سے کچھ حقائق پیش کرنے کے لیے یہ گفتگو کا تیسرا سیشن ہے، اور اس سیشن میں ہم اس چیز کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اکثر خطبہ نیٹ پہ جن کی گفتگو موجود ہے، اور ان میں سر فہرست جناب انجینئر مرزا محمد علی صاحب ہیں، اور یہ ویڈیو حقیقت میں بنائی ہی انہی کے لیے جا رہی ہے۔ بار بار یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کی کتاب، ان سے گزارش ہے اور باقی بھی خطباء سے گزارش ہے کہ اس کو شیعوں کی کتاب مت بنائیے، اسے علی کے کلام کا مجموعہ کتاب قرار دیجئے۔ ویسے تو جناب مرزا صاحب نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ابتداء میں اہل سنت نہج البلاغہ کو قبول کرتے تھے۔ اب انشاءاللہ ایک سیشن میں عرض کریں گے کہ پھر رد کرنا ابن خلقان نے کوئی 240 سال بعد کیسے شروع کیا، اور ابن خلقان کون تھا۔ ایک بڑی واضح سی چیز ہے، اور اس میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ابن خلقان شامی و دمشقی یہ یزید کا بڑا دلدادہ تھا۔ تو بہرحال اس پہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں، گزشتہ 2 سیشنز میں ہم نے خطبہ نمبر 5 کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کی تھیں، جن کو بہت بڑا موضوع بنا کے جناب مرزا صاحب اور میں نے بعض جگہ پہ جناب مولانا اسحاق مرحوم پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، بہت خدمت کی ہے انہوں نے بھی، تو انہوں نے بھی اس خطبہ 5 کو بعض جگہ پہ اس عنوان سے پیش کیا کہ امیر المؤمنین خلفائے ثلاثہ کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ شیعہ اس کی کیوں مخالفت کرتے ہیں۔ پہلے مرحلہ یہ ہے کہ میرے ان ریکارڈنگ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ مانیے، جس کو جی چاہے مانیے، لیکن ایک احسان کیجئے، مانیے منوائیے نہیں۔ اور اہل تشیع سے بھی یہی گزارش ہے، آپ اپنے ائمہ اہل بیت کے فضائل بیان کیجئے، لیکن کسی کے عقائد اور کسی کے مقدس ہستیاں، ہمارے تمام مراجع یہی کہتے ہیں، وہ چیزیں جو کسی کے ہاں مقدس ہیں، محترم ہیں، ان کا احترام رکھیے۔ آپ کے پاس تھوڑے فضائل ہیں علی علیہ السلام کے کہ آپ ان کو بیان کیجئے۔ جب آپ علم علی کو بیان کریں گے، تفسیر علی کو بیان کریں گے، توحید علی کو بیان کریں گے، دعاؤں کی صورت میں سید سجاد کے صحیفوں کو بیان کریں گے، کربلا میں سید الشہداء کی قربانی کو پیش کریں گے، تو ہر عقل مند سمجھے گا کہ اس راہ خدا میں قربانیاں کس نے دی ہیں اور تعلیمات کس نے مہیا کی ہیں۔ لہذا اہل تشیع برادران سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے بزرگان کے کلمات کو دیکھیے اور دوسروں کے مقدسات کو مت چھیڑیے، اپنے ائمہ کی عظمت اور مقام بلند کیجئے اور اس کو بار بار بیان کیجئے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ بہرحال امید ہے کہ خط 5 کی سمجھ ان احباب کو آ گئی ہوگی اور واضح ہو گئی ہوگی یہ حقیقت کہ خطبہ نمبر 5 کی حقیقت کیا ہے۔ ممکن ہے یہ تیسرا سیشن ہے، چونکہ ہم نے پہلے 2 سیشنز میں تفصیل عرض کی ہے، اختصار کے ساتھ اس گزشتہ بحث کا خلاصہ کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ جب جناب پیغمبر اکرم کی رحلت ہوتی ہے تو ابو سفیان جناب امیر علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اور ساتھ جناب عباس کو، جو جناب امام کے چچا ہیں، ان کو بھی لے کے آتا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ خلیفہ اول کی مخالفت کیجئے، اور ہم آپ کی حمایت میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑے سواروں سے بھر دیں گے، یعنی آپ کی مدد کریں گے۔
अमीर अल-मोमिनीन ने उसको फितना करार दे के रद्द कर दिया और फिर पहला जुमला ये फरमाया कि नजात की कश्तियों के सवार हो के नजात हासिल करो। तो नजात की कश्तियां में फिर तबीयत बन रही है कि खुतबा 5 की वजाहत की तरफ चला जाऊं, लेकिन नहीं, छोड़िए इसको। और मिर्जा साहब से यही गुजारिश है, इख्तिलाफी चीज़ों को, मुनाजराना चीज़ों को छोड़िए। अगर इसको समझना है कि ये मुराद इमाम की क्या है तो खुतबा नंबर 6 को पढ़ लीजिए। खुतबा 5 इमाम ने इरशाद फरमाया जब जनाब पैगम्बर की रहलत होती है, खलीफा अव्वल की बैत के वक्त। खुतबा 6 जनाब इमाम ने इरशाद फरमाया है जंग जमल के मौके पे थे, 37 हिजरी के इर्द गिर्द। अब उसमें इमाम फरमाते हैं कि हर दौर में मेरा हक छीना जाता रहा। मैंने अर्ज किया था जनाब रईस अहमद जाफरी के हवाले से इसका तर्जमा, बहरहाल जिन अहबाब को तफसील चाहिए वो गुज़श्ता सेशन के गुफ्तगू सुन लें। बस इतना इजाफा है कि मजीद भी अगर ख़त खुतबा 5 को समझना है तो ख़त 28 को और ख़त 62 को देख लीजिए। ख़त 6 का तर्जमा हमने जनाब अहले सुन्नत आलिम रईस अहमद जाफरी साहब के हवाले से अर्ज किया था, ये हमारा हाथ में उनका तर्जमा है। और ये जो तर्जमा अर्ज कर रहा हूँ ये अब्दुल रज़ाक मली आबादी साहब का है। अब देखिए इसमें ख़त 28 है, मेरे पास जो ये प्रिंट है ये सफ़ा 752 752, तर्जमा जनाब अब्दुल रज़ाक मली आबादी नदवी। और ये इस ख़त के तर्जमे में मैं बस मुख्तार कर रहा हूँ। हाकिम शाम के ख़त का जवाब दिया इमाम ने और उसकी अरबी यूं शुरू होती है, वज़अम्त अन्नी लिकुल्लिल खुलफ़ाए हसद, तो और तुमने दावा किया कि मैं सब खुलफा पर हसद करता था। अब यह हाकिम शाम लिखा, इमाम ने उसका जवाब दिया कि तुमने दावा किया है कि मैं सब खुलफा पर हसद किया करता था और सबसे सरकशी करना मेरा वतीरा था। अगर वाकई यही है तो मैंने तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं किया कि तुम्हारे सामने अपना उज़्र पेश करूं। अब ये इसके लिए इस ख़त 28 को पेश कर रहा हूं कि जरा समझिए, ख़त 62 भी मद्देनजर होगा। खुतबा 5 को समझने के लिए ये हिस्सा जरूरी है पढ़ना। और तुमने लिखा है कि खुलफा की बैत के लिए मुझे इसी तरह घसीटा जाता था जिस तरह नकेल पड़े ऊंट को चलाया जाता है, तो बखुदा तुमने चाही थी मुजम्मत और हो गई तारीफ। तुमने चाहा था रुसवा करना और हो गए तुम खुद रुसवा। क्यों? इमाम फरमाते हैं भला सोचो तो, वमा अलल मुस्लिम मिन गदाज़तिन फी अन यकून मज़लूमन मा लम यकुन शाकन फी दीनिह। भला सोचो तो मुसलमान के लिए इसमें भी कोई ऐब है कि वो मजलूम हो, बशर्ते कि न अपने दीन में शक रखता हो न अपने यकीन में तज़ल्ज़ुल। तुम इस अच्छाई के मुखातिब नहीं थे मगर मैंने तुम्हारे लिए इसे छोड़ दिया है। अब ये इससे ज्यादा वजाहत मकसूद नहीं है। खत 28 को देखिए और खुतबा 5 की खामोशी को समझिए और फिर इजाफा करता जाऊं और कोशिश करूंगा न छेड़ूं फिर खत 5 को आइंदा। अब आप देखिए खत नंबर 62 को देखिए। ये भी तर्जमा अहले सुन्नत आलिम जनाब अब्दुल रज़ाक मली आबादी का है और मैं अब्दुल रज़ाक मली आबादी के बारे में कुछ अर्ज कर चुका हूं पिछले सेशन में। खत नंबर 62 मालिक अश्तर के हाथ अहले मिस्र को खत जब उन्हें गवर्नर बनाकर भेजा था। ये 3 खत हैं इमाम के और इसमें ये खत जो है ये मालिक अश्तर को अहले मिस्र के लिए लिख के दिया था और इसमें इमाम ने अपनी शुजाअत का भी तज़किरा किया है। शुजाअत में इमाम फरमाते हैं बखुदा मैं अकेला भी रह जाऊं और ये बातिल प्रस्त सारी जमीन पर छा जाएं तो भी मुझे न परवाह होगी न वहशत ही सताएगी। अब ये अली की शुजाअत अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ जनाबे इमाम फरमाते हैं मैंने चुप क्यों की थी। इमाम फरमाते हैं कि बखुदा मेरे तस्वुर में न था। काश हमें नहजुल बलागा से ये बातें न पेश करनी पड़ती, हमें तफसीर कुरान नहजुल बलागा से पेश करनी पड़ती।
बखुदा मेरे तसव्वुर में न था कि अरब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस मामले को अहले बैत से दूर कर देंगे, बल्कि मुझे यकीन था कि मामला मेरे हाथ ही रखेंगे। मगर देखता क्या हूं कि लोग फलां की बैअत पर टूट पड़ते हैं। अब फलां के अंदर खुद अब्दुल रज़ाक मदीहाबादी ने, अहले सुन्नत आलिम ने, ये मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम का तर्जमा नहीं पढ़ रहा, मेरे पास कोई 8 के करीब शिया उलमा के तर्जमे मौजूद हैं, मैं ये अहले सुन्नत का तर्जमा पढ़ रहा हूँ। मगर देखता क्या हूँ कि लोग फलां ब्रैकेट में लिखते हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बैअत पर टूटे पड़ते हैं। इस पर मैंने अपना हाथ रोक लिया, यहां तक कि लौटने वाले इस्लाम से लौट गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मिटा देने की दावत देने लगे। तब मैं डरा कि इस्लाम और अहले इस्लाम की ताईद और नुसरत पर खड़ा न होऊंगा और इस्लाम में शगाफ पड़ जाएगा। यह है अली की चुप का सबब कि इस्लाम को अली ने मिटते हुए देखा, तो अली की चुप ने उस मिटते हुए इस्लाम को बचाया। बहरहाल इससे ज़्यादा इस खुतबे पे अभी रुकना नहीं है। ये है, उम्मीद है कि इस खुतबे को मुतवज्जे हो गए होंगे। खुतबा नंबर 5 के बारे में अगर कोई आइंदा पूछे तो इसी पे इक्तिफा करते हैं। आज की गुफ्तगू में जो चीज़ पेश करनी थी वो ये कि आप नहजुल बलागा को शिया किताब मत कहिए, इसको कलाम अली समझिए। और अली शियों के पहले इमाम हैं तो अहले सुन्नत के चौथे खलीफा हैं। रह गया अहले सुन्नत के हाँ नहजुल बलागा का मकाम, तो बस वो अर्ज करता हूँ मुख्तसरन, बस इसी से शुरू कर दूं। ये 2 चीज़ें तो आपके सामने आ गई, ये आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ जनाब रईस अहमद नदवी और जनाब अब्दुल रज़ाक मदीहाबादी दोनों अहले सुन्नत उलमा हैं। दोनों ने मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम के तर्जमे से पहले ये तर्जमा किया है और नहजुल बलागा की अजमत के लिए कल पहला बोल नकल किया था। किसी वक्त रईस अहमद जाफरी के शज़रात भी अर्ज कर दूंगा। तो ये 2 हवाले आपके सामने रहें कि ये उर्दू तर्जमा भी अहले सुन्नत का नहजुल बलागा का पाकिस्तान में मौजूद है, लाहौर से छपा है, शेख गुलाम अली एंड सन्स पब्लिशर्स लाहौर की तरफ से। ये मेरे पास 3 नुस्खे हैं। एक हुआ ये हवाला, दूसरा खुद जनाब मिर्जा साहब ने नहजुल बलागा के बारे में ये फरमाया है कि नहजुल बलागा की उलमाए अहले सुन्नत ने शरहें भी लिखी हैं और उन्होंने खुसूसियत के साथ एक शरह का तज़किरा किया है, फ़ख्रुद्दीन राज़ी, जिन्होंने तफसीर मफ़ातिहुल गैब, जिसको तफसीर कबीर कहा जाता है, वो लिखी है। बहुत कोशिश की गई है, इस वक्त तक कहीं इसका पता नहीं चला, लेकिन मैं आपकी खिदमत में नाम तो नहजुल बलागा का नहीं लिखा, लेकिन जनाब फ़ख्रुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर की दूसरी जिल्द में सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में मलाइका की बहस में नहजुल बलागा का पहला खुतबा काफ़ी हिस्सा उसका नकल किया है। मैं मिर्ज़ा साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि ये बहुत अच्छी वेबसाइट है तफसीरों के लिए। ये उर्दन मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन की वेबसाइट है। इस पे तकरीबन 54 तफसीरें हैं, शिया और सुन्नी सारी तफसीरें मौजूद हैं। मेरे पास उसी अत्तफासीर.com, इस पे अगर आप जाइए तो तफसीर कबीर, मफातिहुल गैब, जिनकी रहलत होती है 606 हिजरी में, इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी, वेबसाइट के सफ़ा 7 पे आप जाएंगे। कुल 18 सफ़ात हैं इस एक आयत के तफसीर में। आयत क्या है? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा, जब रब परवरदिगार ने फरमाया मलाइका से कि मैं ज़मीन में खलीफा बना रहा हूँ। अब ये खलीफा की बहस से पहले मलाइका की बड़ी तफसीली बहस, यानी 18 सफ़ात की बहस की है
फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में बहस करते करते एक मकाम पे आते हैं और ये फरमाते हैं वअलम अन्नहु लैसा बाद कलामिल्लाहि व कलाम रसूलिही कलामुन फी वस्फिल मलाइकति अअला व अजल मिन कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम। न वेबसाइट शियों की है न किताब शियों की है, लेकिन जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की अजमत इस आलिम बुजुर्गवार ने जिस खूबसूरत अंदाज से पेश की है, मैं मुश्किल से गुजर रहा हूँ, वरना इंशाल्लाह किसी वक्त अर्ज करूँगा तफसीर कुरान नहजुल बलागा से। तो मेरे सामने तफसीर कबीर की बिस्मिल्लाह की वो शरह है, जहाँ जनाब फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं मैं दीन अली पे हूँ, मैं नजरिया अली पे हूँ। बिस्मिल्लाह की बात फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, अगर किसी को समझनी है तो उससे समझिए जिसको नबी ने बाबुल इल्म करार दिया है। बिस्मिल्लाह बिल जहर पढ़नी चाहिए या बिल इख्फात, वो कुरान की बहस जब आएगी तो उसको हम पेश करेंगे। इसलिए मैं जनाब मोहतरम मिर्ज़ा साहब से बार बार यही अर्ज कर रहा हूँ, जवानों को नहजुल बलागा से कुरान समझाइए, न कि फलां फलां की शान समझाइए। आप मानिए उसको, नहजुल बलागा से मान लीजिए, अपनी किताबों से मान लीजिए। जवानों को आप कुरान समझाइए। नहजुल बलागा में कुरान के बारे में ये किताब कुरान मजीद अज निगाह नहजुल बलागा मद नज़र रहे, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन उस वक्त जो है वो बहस होगी। फखरुद्दीन राजी ने बिस्मिल्लाह बिल जहर पढ़नी है या बिस्मिल्लाह बिल अख्फात पढ़नी है, इसके बारे में जो बहस की है वो बहस की है। बहरहाल ये आयत 30 सूरह बकरा, इज़काल रब्बुका लिल मलाइका, मलाइका की बात में जरा तर्जुमा सुन लीजिए। वअलम, आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के कलाम और उसके रसूल के कलाम के बाद मलाइका के मुतअल्लिक और फी वस्फिल मलाइका, मलाइका के औसाफ के बारे में कोई कलाम अअला व अजल मिन कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम के कलाम से अअला और अजल कोई कलाम नहीं है। बादज खुदा और बादज कलाम रसूल खुदा, फखरुद्दीन राजी कहते हैं इससे बढ़ के कोई कलाम नहीं है। अला व अजल लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, और फिर जो कलाम बतौर शाहिद पेश किया है मोहतरम, ये कलाम किसी शिया का नहीं है, ये कलाम अली का है। लिखने वाले इसको जनाबे फखरुद्दीन राजी हैं, और मैं तर्जमा इस पहले खुतबे का अहले सुन्नत आलम रईस अहमद जाफरी से पढ़ रहा हूँ। यहाँ इन्होंने चूंकि काफ़ी तफसीली हिस्सा लिखा है, नहजुल बलागा खुतबा 1, और ये अगर आप देखें तो यहाँ मेरे पास सफ़ा 123 है, रईस अहमद जाफरी का तर्जमा। शुरू यूं से होती है इबारत, सुम्मा फातक मा बैन अस्समावातिल उला फमलअहुन्न अतवारन मिन मलाइकतिही। सुम्मा फातका, ये पहला जो लफ्ज़ है अरबी का, सुम्मा फातका, और फिर आखिर तक जो है वो लिखते जाते हैं। काफ़ी हिस्सा जो है वो इसका लिखा है, आखिर तक ये फिर खिलकत आदम की गुफ्तगू होती है। आखिरी जुमला इस हिस्से का ये है, वला युशीरून इलैहि बिन नज़ाइर। कुछ हिस्सा पढ़ देता हूँ कि फखरुद्दीन राजी ने नहजुल बलागा का नाम नहीं लिया, फरमाते हैं कलाम अमीरुल मोमिनीन। अब इससे एक बात ये भी वाज़ेह हो गई, अगर सैयद रजी ने नहजुल बलागा का हवाला नहीं लिखा तो आइए कहीं से तो फखरुद्दीन राजी ने इसको देखा होगा। वही जिसको फखरुद्दीन राजी ने देखा वही शायद सैयद रजी का हवाला हो। अब वो रेफरेंस और इस्तिनाद जो पूछते हैं कहाँ है, वो ज़रा जाके पहले खुतबे के बारे में पूछ लीजिए जनाबे फखरुद्दीन राजी से। आपने बादज कलाम खुदा और रसूल खुदा इतनी अहमियत जो दी है तो हवाला तो देते। तो जनाबे फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, काल फी बाज़ खुतबिही, जनाबे अली अलैहिस्सलाम अपने बाज़ खुतबात में इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा फातक मा बैन अस्समावातिल उला। तर्जमा भी सारा नहीं पढ़ सकूंगा।
रईस अहमद जाफरी साहब का तर्जमा देखिए। फिर खुदा ने बुलंद आसमानों के बीच में शिकाफ दिया और उन खलाओं को फरिश्तों की मुख्तलिफ किस्मों से पुर कर दिया। उन फरिश्तों में कुछ हालत सजदा में हैं, रुकू नहीं करते, कुछ मसरूफ रकू हैं और खड़े नहीं होते। उनमें एक ग्रोह सफ बस्ता खड़ा है जो अपनी जगह से हिलता तक नहीं। कुछ वो फरिश्ते हैं कि तस्बीह खानी में मसरूफ हैं मगर जरा नहीं थकते। ये तमाम मलाइका ऐसी गैर मादी हस्तियां हैं कि उन पर आंखों की नींद छाती है, न अक्लों की भूल का गलबा होता है, न बदनों की सुस्ती तारी होती है, न भूल चूक की गफलत का असर तारी होता है। इन्हीं फरिश्तों में एक किस्म के वो हैं जो खुदाबंद मुतआल की वही के अमीन हैं, उसके पैगंबरों और रसूलों के पास पैगंबर बनकर और अहकाम और फरामीन इलाही लेकर आते हैं। और उन्हीं में एक किस्म उन फरिश्तों की है, या अली बतला तो ऐसे रहे हो जैसे आसमां के जर्रे जर्रे और फरिश्तों की एक एक शख्स से आगा हो। तो अब इसमें नहजुल बलागा का वो जुमला अमीरुल मोमिनीन का समझ आता है, सलूनी सलूनी, मुझसे पूछ लो, मुझसे आसमान की राहें पूछ लो, मैं आसमान की राहों को जमीन की राहों से बेहतर समझता हूँ। यह है फखरुद्दीन राजी ने जिस खुतबे को नकल किया, गोया अली उस मंजर को पेश कर रहे हैं जो अली ने नबी से सीखा, नबी ने खुदा से सीखा। और यह है फरिश्तों के बारे में भी अगर पूछना हो तो आला व अजल कलाम फखरुद्दीन राजी के मुताबिक कौन सा होगा? वो होगा कलाम अली इब्न अबी तालिब। अब जब कलाम अली इब्न अबी तालिब से मलाइका की पहचान होती है तो फिर इसको कलाम अली ही रहने दीजिए, इसको ये मत कहिए कि शियों की किताब, वरना जवान इससे गाफिल रह जाएंगे, महरूम रह जाएंगे और जामिन हम और आप होंगे। अब ये हो गया हमारे सामने पहला खुतबा और अहले सुन्नत आलिम फखरुद्दीन राजी। अब अगर फखरुद्दीन राजी के साथ दूसरा अहले सुन्नत आलिम पेश कर दूं तो वो ये आप देखिए, इसका भी बड़ा हवाला देते हैं और इसका तज़किरा होगा। ये है जनाब इब्ने अबिल हदीद मुअतज़ली। अब इनके बारे में जब गुफ्तगू होगी तो वो 606 जनाब फखरुद्दीन राजी ने खुतबा लिखा और जनाब इब्ने अबिल हदीद ने शरह लिखनी शुरू की अव्वल रजब 644 हिजरी और मुकम्मल की है 4 साल में 649 हिजरी में। अब ये भी अहले सुन्नत हैं। अलबत्ता इस पे एक बहस होगी। मुझे एक शिकवा है जनाब मौलाना मौदूदी साहब से, खिलाफत व मलूकियत बड़ी खूबसूरत लिखी लेकिन आखिर में माखज़ में आके कहते हैं इब्ने अबिल हदीद शिया था। आसान तरीन तरीका है, कह दो ये शिया था, फिर उससे कोई बात कबूल नहीं की जाएगी, इसलिए कि बड़ा जुर्म यही है कि वो शिया था, वो राफसी था और वो माइल बतशय्यो था। आसान है लेकिन तहकीक वालों ने आज ये भी साबित कर दिया, अगर आप राफसी कह के रद्द करेंगे कर दीजिए, लेकिन फिर बुखारी का भी एहतमाम कीजिए, इसलिए कि बुखारी में सैकड़ों रावी राफजी हैं। अब हरहाल एक बहस अलग है, लेकिन मुझे जनाब मौदूदी साहब जैसे एक मुहक्किक के हवाले से बड़ी तकलीफ हुई है कि वो कहते हैं ये तो मुसल्लमा किताब ही शियों की है। अब अगर फुर्सत हुई तो ये इससे जनाब इब्ने अबिल हदीद, ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, इसकी 20 जिल्दें हमारे पास मौजूद हैं। ये इंशाअल्लाह बहस वक्त हुआ तो होगी। तो ये दूसरा हवाला जो है वो आप फखरुद्दीन राजी का भी सुन लिया, इब्ने अबिल हदीद का भी सुन लिया, पाकिस्तान और बड़े सगीर की शख्सियत जनाब रईस अहमद का भी सुन लिया और जनाब अब्दुल रज़ाक मलियाबादी का भी सुन लिए। मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ, अगर इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये जनाब इब्ने अबिल हदीद मुअतज़ली के बाद
ایک شخصیت جس نے نہج البلاغہ کی بہت خدمت کی، یہ جناب شیخ محمد عبدہو ہیں۔ یہ ان کا بیروت کا نسخہ ہے، اور اگر چاہیں گے تو یہ ان کے اسی نہج البلاغہ اور اس کی شرح کے بارے میں یہ مصر کا نسخہ ہے، اور اگر مزید چاہیں گے تو ہمارے پاس اسی کا ایک نسخہ بغداد کا ہے۔ یہ اہل سنت عالم ہیں، اور مصر کا نسخہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ اب اس کو لے لیجئے۔ اگر آپ اس سے آگے بڑھیں گے تو ہمارے پاس اہل سنت علماء میں سے یہ نسخہ دیکھیے، یہ محمد محی الدین عبد الحمید، یہ شیخ محمد عبدہو کے شاگرد ہیں، یہ ان کا ایک حاشیہ ہے۔ اور اگر آپ اس سے آگے آئیں گے تو یہ ہمارے پاس مصر ہی کے ایک بزرگ شخصیت جناب نائل مرصفی کا یہ نسخہ ہے، بڑا خوبصورت، اور ہم نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو تلاش کیا، نائل مرصفی۔ اور یہ نسخہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہج البلاغہ کا، اور ان کے پہلا صفحہ میں دکھانا چاہ رہا تھا، یہ ہے، آپ اس کو اگر دیکھ لیجئے تو یہ نہج البلاغہ، اور یہ پرنٹ ہے مصر کی دار الکتب العربی عربیت الکبریٰ، اور یہ محمد حسن مرصفی۔ اب تھوڑی سی بحث کرنا چاہتا تھا، اور وہ ہے یہ نسخہ، اس کو آپ دیکھیے گا، اور یہ نسخہ جو اس وقت ایران میں سب سے زیادہ مقبول پرنٹنگ ہے وہ ہے جناب ڈاکٹر صبحی صالح۔ اگر آپ عزیزان تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اور بالخصوص جناب انجینئر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر جا کے دیکھیے تو ان کی 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں، اردو ترجمہ ان کا موجود ہے، میں نے تفصیل لکھی ہے۔ ایک کا نام ہے مباحث فی علوم الحدیث، اس کا ترجمہ کیا ہے پروفیسر غلام احمد حریری صاحب نے، اور ایک ان کی کتاب ہے ڈاکٹر صبحی صالح کی علوم قرآن، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، اس کا ترجمہ علوم قرآن کا ترجمہ پروفیسر غلام احمد حریری نے کیا ہے، اور جو علوم حدیث کی کتاب ہے اس کا ترجمہ مولانا محمد رفیق چودھری نے کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ اس پہ بحث کریں گے۔ آخر میں ہم اس وقت پاکستان میں جوانوں میں ایک بڑی ہی مقبول شخصیت، میں مرزا صاحب سے بھی یہی کہوں گا، باقی خطباء سے بھی یہی کہوں گا، جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جیسے ڈاکٹر طاہر القادری نے اس کو اپنا واقعاً علمی ایک انداز اپنا کے نہج البلاغہ اور درس تصوف دیا، میں عظمت کا قائل ہوں۔ جناب ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں سید قاسم علی شاہ، موجود ہیں، اہل سنت میں سے ہیں، جوانوں کے لیے خوبصورت کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم کسی وقت اس پہ بھی ایک پروگرام کریں گے۔ نہج البلاغہ کے ایک سیشن، نہج البلاغہ اکثر کوٹ کرتے رہتے ہیں، ان کے ایک سیشن کا 2 جملے میں ان کے نقل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں علم کے دروازے سے جب آپ داخل ہوتے ہیں، وہ حدیث نقل کی قاسم علی شاہ صاحب، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پہ آپ جا کے ان کی ویڈیو دیکھ لیجئے، علم کے دروازے سے جب آپ داخل ہوتے ہیں علم کے سچے موتی نہج البلاغہ میں ملتے ہیں۔ یہ جملہ بالخصوص جوان اگر سن رہے ہیں، ہم جیسے مولویوں کو جو ہم آپ کو اختلافات میں الجھائے ہوئے ہیں، کم از کم اس آدمی کو پڑھ لیجئے، سن لیجئے۔ قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، یہ ان کی ویڈیو، میں نے اس کو پھر ٹائپ کرایا ہے اور ان کی ویڈیو لکھوائی ہے اور پرنٹ کرائی ہے، تو دنیا میں جتنی وزڈم کی کتابیں ہیں، کم از کم میرا مطالعہ ہزاروں کتابوں کا ہے۔ قاسم علی شاہ، ان سب وزڈم فل کتابوں کو ایک طرف رکھ دیجئے، آپ امام علی کی نہج البلاغہ کو وزنی اور بھاری پائیں گے۔ پروردگار ہمیں نہج البلاغہ سے کچھ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج جی چاہ رہا تھا، گزارش کروں گا، خطبہ نمبر 85 کو پڑھ لیجئے۔ علی صدا دے رہے ہیں، این تذہبون
वअन्ना तुफ़कून, कहाँ ले जाया जा रहा है आपको, कहाँ भटक रहे हो। हिदायत के परचम आपके दरमियान मौजूद हैं। रईस अहमद जाफरी साहब का तर्जुमा इंशाअल्लाह अगले सेशन में यहीं से शुरू करेंगे। हाँ, हिदायत के मीनार कायम हैं, कहाँ जा रहे हो। इतरत नबी कौम, नबी की इतरत आपके दरमियान मौजूद है। खुतबा नंबर 85 पढ़ लिए जवानान, और अली से और कुछ नहीं तो अली से अल्लाह की कलाम को पहचान लीजिए। परवरदिगार हमें हक समझने, उस पर अमल करने और अपने आप को ये शिया सुन्नी की तकसीम के बजाय मुसलमान बना के इस्लाम हकीकी की तबलीग और तारुफ कराने की हिम्मत दे। और मैं अपने शिया जवानों से ये भी गुजारिश करूँगा, आप भी देखिए, ये मेरी खिताब तो अहले सुन्नत से फ़कत नहीं है, मैंने पहले सेशन में भी कहा था, ज़रा अहले सुन्नत से बाद में पूछूंगा, अपने आप से पूछता हूँ और मैं अपने शिया जवानों से पूछता हूँ, आप बतलाइए कलाम अली को आपने कितनी दफ़ा पढ़ा रात दिन। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब को तो पढ़ा है, लेकिन क्या मैं मौलवी जिक्र करूंगा आप सुनेंगे तो ये जिक्र काफ़ी है? नहीं, कभी कभी अली के कलाम को पढ़िए और यूं बैठ के पढ़िए गोया अली बोल रहे हैं, मैं और आप सुन रहे हैं। ये हकीकत में मोहब्बत का एक इज़हार होगा। परवरदिगार तौफीक दे कलाम अली के पढ़ने की, उसे समझने की, उस पर अमल करने की, और हमारे इन मुहक्किकीन को जो वाकई खिदमत कर रहे हैं, आले मोहम्मद की मोहब्बत में बेशुमार खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जैसे जनाब इंजीनियर साहब हैं, और मुझे पसंद है खिताब जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का, मरहूम इसहाक साहब और मौलाना तारिक जमील का कुरान के हवाले से, कुरान और अली के हवाले से कुछ चीज़ें इंशाअल्लाह किसी वक्त अर्ज करेंगे। परवरदिगार दीन के इन खिदमत गुजारों को मज़ीद हिम्मत दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।